गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमारा मॉड्यूल ई है सीसीपी का। इसमें हम लोग देखेंगे, इसमें हमारा जो मॉड्यूल ई है, मॉड्यूल ई में ग्रेड सर्टिफाइड ग्रेड प्रोफेशनल के लिए जो हम लोग देख रहे हैं, इसमें है मॉनिटरिंग, सुपरविजन, फॉलोअप एंड मैनेजमेंट ऑफ इम्पेयर्ड एसेट्स। इस मॉड्यूल में यही पढ़ना है। सबसे पहला जो हमारा मॉड्यूल ई में जो पहला चैप्टर है वो डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन इम्पोर्टेंट पार्ट, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट कह सकते हैं। ठीक है, आफ्टर सैंक्शन ऑफ लोन, each and everything will be documented, paying either stamp duty or revenue, receipts and other things. Thereafter, types of charges, ठीक है, ROC, equitable mortgage, registered mortgage, lien, pledge, everything will be come under the types of charges. Thereafter, we have already sanctioned the loan. Now, after sanctioning the loan, it is our focus, and it is the bank focus, or it is the financial institutions focus to how to monitor our assets. ठीक है, so that it cannot be turned into the NPA accounts. Okay, that is monitoring, supervision and follow-up. 17, management of impaired assets. ठीक है, next has management of impaired assets and fair practice codes on lenders liability, that is the chapter 78. So we start our first chapter, documentation. देखिए documentation, तो documentation में जो है, इसमें meaning क्या है, what is the meaning of documentation, importance of documentations, types of documentation, requisite documentations कौन कौन से हैं, selection of documentation, stamping, without stamping or without paying stamp duty to the concerned state governments, that is the, चूँकि stamp duty comes under the review of state government. ठीक है, स्टेट तीन होते हैं ना, सेंट्रल, स्टेट एंड दोनों का पार्शियल जिसको बोलते हैं। ठीक है, जब आप पढ़ेंगे सेंटर के अधिकार, राज्य के अधिकार और दोनों के अधिकार। ठीक है, तो स्टैंपिंग इंस्ट्रूमेंट जो है, स्टाम्प ड्यूटी जो है, वो स्टेट का सब्जेक्ट। ठीक है, सेंट्रल सब्जेक्ट, स्टेट सब्जेक्ट एंड बोथ सब्जेक्ट। डॉक्यूमेंट्स विच रजिस्ट्री इज कंपल्सरी, रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपल्सरी, execution of a document, what is the meaning of execution of document, limitation of document, enforcement of document, scrutiny of document at time of executions, last but not the least, that is sum up. So here we start about our chapter, that is documentation. देखिए documentations क्या है, documents are written records of the arrangements, किसी भी चीज का written records है, arrangement reached by the bank and the borrower that spell out the rights and responsibility of both the parties to the loan. किसी भी लोन के लिए जो है bank and borrower, when bank and borrower are entered into an written statement, written document, written records, that is called our documentation. बैंक किसका किसका डॉक्यूमेंट लेता है, executed by borrowers and the guarantors if any. ठीक है, depending upon the types of borrower, nature of security and charge if any, depending upon the types of borrower, nature of security and charge and types of advance. ठीक है, ये क्या करता है, दिस डॉक्यूमेंट प्रोटेक्ट्स बैंक्स इंटरेस्ट, बैंक इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करता है इन केस ऑफ डिफॉल्ट ऑफ लोन्स, in the event of disputes and when the bank has to move to court of law for recovery of dues. डॉक्यूमेंट का मीनिंग क्या होता है फ्रेंड्स, डॉक्यूमेंट मीनिंग्स, तो सेक्शन 3 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट कहता है 1872 कि डॉक्यूमेंट मीन्स एनी मैटर एक्सप्रेस्ड or described upon any substance by means of letters, figures, or by more than one of these means intended to be used or
or which may be used for the purpose of recording the matter is called documents. डॉक्यूमेंट्स का मतलब ये हो गया कि कोई भी मैटर, एनी मैटर एक्सप्रेस्ड, जब एक्सप्रेस किया जाए या डिस्क्राइब किया जाए अपॉन एनी सब्सटेंस, ठीक है, बाय मीन्स ऑफ लेटर्स, लेटर के फॉर्म में, फिगर्स, और बाय मोर देन वन ऑफ दीज मीन्स intended to be used for which may be used for the purpose of recording that matter. ठीक है, तो ये कहता है हमारा सेक्शन 3 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट. ठीक है, इन कॉमन पैरेलेंस द टर्म डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स जो होता है रेफर ऑल द रिटन रिकॉर्ड्स, जो भी रिटन रिकॉर्ड्स है क्रिएटेड फॉर द पर्पस ऑफ एविडेंस ऑफ लोन मेड बाय द लेंडिंग ऑफ द बैंक. ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने HL दिया तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग टर्म लोन एग्रीमेंट साइन कराते हैं. टर्म लोन एग्रीमेंट दैट इज कॉल्ड हाउसिंग लोन एग्रीमेंट. थोड़ा सा इसमें विस्तृत में होता है. ठीक है, दूसरा हम लोग कराते हैं लेटर ऑफ इंटरेस्ट वेरिएशन, इंटरेस्ट वेरिएशन. ठीक है, तीसरा हम कराते हैं लेटर ऑफ वेवर, वेवर. ठीक है, चौथा हम लोग कराते हैं, क्या कराते हैं, सैंक्शन लेटर एक्नॉलेज कराते हैं, ACK कराते हैं. पांचवा हम लोग क्या करते हैं, EM ऑफ इक्विटेबल मॉर्गेज ऑफ प्रॉपर्टी कराते हैं. छठा हम लोग उससे क्या करते हैं, हम लोग इन रिटर्न उससे हम लोग क्या लेते हैं, लेटर फॉर क्रिएशन ऑफ मॉर्गेज, मॉर्गेज. देर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, चार्ज चढ़ाते हैं सरसई पे, सरसई पे हम लोग चार्ज चढ़ाते हैं. ये सम सर्टेन स्पेसिफिक सेगमेंट है जो हम व्हाइल सैंक्शनिंग द हाउसिंग लोन वी हैव टू डन विदाउट एनी एक्सेप्शंस. ठीक है, तो कहता है द इंडियन स्टाम्प एक्ट व्हाइल डिफाइनिंग इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट को जो डिफाइन करता है इंडियन स्टाम्प एक्ट 1872. ठीक है, सेक्शन 3 ऑफ इंडियन स्टाम्प एक्ट इंडियन 1872. तो इसमें कहता है इंस्ट्रूमेंट क्या होगा, इंस्ट्रूमेंट इंक्लूड्स एवरी डॉक्यूमेंट्स, कोई भी डॉक्यूमेंट्स बाय विच एनी राइट और लायबिलिटी ईच और purported to be created, transferred, limited, extended, extinguished और recorded. ये सेक्शन 2(4) ऑफ द इंडियन स्टैम्प एक्ट 1872 का है. कहता है इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट किसे कहा जाएगा, तो इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड, कोई भी इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट इंक्लूड एवरी डॉक्यूमेंट्स बाय विच एनी राइट, कोई अपना राइट्स एंड लायबिलिटी इज और परपेटेड टू बी क्रिएटेड. ठीक है, क्रिएट करता है या तो ट्रांसफर करता है, लिमिटेड करता है, एक्सटेंडेड करता है, एक्सटिंग्विश्ड करता है और रिकॉर्ड करता है, दैट इज कॉल्ड इंस्ट्रूमेंट. ठीक है, एज पर दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट जो है, इस केस में दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट भी आया था. ये केस था चीफ कंट्रोलर रेवेन्यू अथॉरिटी वर्सेस सत्यवादी सूद. ठीक है, डिफिनेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या, इंक्लूड 2 टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स. इंस्ट्रूमेंट में 2 टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स है. पहला, ए डॉक्यूमेंट बाय विच एनी राइट और लायबिलिटी इज purports to be created, transferred, limited, extended, extinguished. पहला डिफिनेशन इसने दिया था, दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट था, चीफ कंट्रोलर रेवेन्यू अथॉरिटी वर्सेस सत्यवादी सूद. सेकंड था, डॉक्यूमेंट बाय विच सच राइट और लायबिलिटी इज ओनली रिकॉर्डेड इवन दो द डॉक्यूमेंट इटसेल्फ डज नॉट क्रिएट सच ए राइट और लायबिलिटी. पहला तो था कि डॉक्यूमेंट बाय विच कोई भी राइट और लायबिलिटी इच और प्रॉपर्टी टू बी, एनी डॉक्यूमेंट बाय विच कोई राइट और लायबिलिटी जो है इस अभिप्राय से क्रिएट किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है या लिमिटेड किया जाता है, एक्सटेंडेड किया जाता है, एक्सट्रेंड किया जाता है. अगर किसी अभिप्राय से किया गया हो तो वो क्या होगा, इंस्ट्रूमेंट कहा जाएगा.
Second होगा document by which such right or liability is only recorded even though the document itself does not create such right or liability. अगर कोई liability create भी नहीं करता, तो ये दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट था, चीफ कंट्रोलर रेवेन्यू अथॉरिटी वर्सेस सत्यवादी सूट। इंपॉर्टेंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स क्या है, देखिए डॉक्यूमेंट्स का इंपॉर्टेंस जो है, डॉक्यूमेंट सर्व द पर्पस ऑफ written record evidence arrangement reached between the lender मतलब बैंक and the borrower, ठीक है, on the terms and conditions governing the loan. This will help avoid disputes. ये क्या help करता है, disputes को avoid करता है on the nature of terms and agreement. For example, मान लीजिए joint borrower can take plea at the future date that he was acting as a guarantor when the document will clearly establish that he has executed a document as a borrower, ठीक है। मान लीजिए HL है, इसमें आपका borrower 1 है, borrower 2 है, ठीक है। बाद में borrower 2 ने कहा कि नो बॉस, I was not the borrower, I was the guarantor. So at the time of disputes, these documents, written documents will speak that the borrower B2 was executed as the document as a borrower, not as a guarantor, ठीक है। As an evidence of fact in the court of law in any legal proceedings against the defaulters. ये फैक्ट्स होता है, एविडेंस ऑफ फैक्ट होगा कोर्ट ऑफ लॉ में अगेंस्ट कोई डिफॉल्टर के अगेंस्ट हम प्रोसीडिंग्स करते हैं। ये बोरोवर को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा, को बोरोवर को एंड गारंटर्स को। आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिक्योरिटी चार्ज टू द बैंक, बैंक के अगेंस्ट में कौन सी सिक्योरिटी चार्ज हुई है, बैंक को चार्ज जो सिक्योरिटी हुई है उसके बारे में आइडेंटिफाई करेगा। आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेचर ऑफ चार्ज, हाइपोथिकेशन, प्लेज, मॉर्गेज, lien etc, and also determines the bank right under the such charge. Safeguarding bank interest by the incorporating protective clause as and when felt necessary. बैंक का इंटरेस्ट भी ये सेव करेगा by incorporating protective clause as and when felt necessary. The bank also tend to obtain document for filling summary suites which are disposed quickly, ठीक है। तो that is the importance of document, ठीक है। Now we come to the types of document. There are 4 types of documents as per the practice or as per the guidelines or as per the Indian Evidence Act 1872. First one is the personal security, ठीक है। Second one is primary security, third is collateral, and lastly tangible securities. Tangible securities or intangible securities, that is the part of intangible security, that is the part of we have already listened or we have already heard, we have already studied in the while finance in the finance chapter financial statement, ठीक है। Now we can come to the personal security, ठीक है। Personal, तो generally the lender takes the following 2 types of document executed by its borrower. 2 टाइप्स कर लेते हैं हम लोग। पहला क्या लेते हैं, पर्सनल लायबिलिटी डॉक्यूमेंट्स एंड सेकंड चार्ज क्रिएटेड डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो पर्सनल लायबिलिटी डॉक्यूमेंट्स क्या होगा, document which makes executant borrower personally liable to bank for any advance loans are these types, ठीक है। some of the documents are DP notes हम लोग लेते हैं, in terms of CC, in terms of overdraft, in terms of revolving credits we have to say revolving credits, ठीक है। whenever we sanction the loan to the borrower either in terms of cash credit or in overdrafts or like in the nature of revolving credits, we have to execute the documents of DP notes, letter of guarantees if the third party is security, if the third party collateral is involved, we have to take the guarantee for letter of guarantee, we have to take the guarantee from the guarantor, or we have in case of company we have the taking the personal guarantee of the directors of the company. Acknowledgement of debts and security, these are the personal liability documents. Now come to the charge creating documents. What is the charge creating documents? These are the documents which create some sort of charge on executant. जो execute किया उसके ऊपर charge create करता है, that is property in favor of bank,
तो उसमें होता है एग्रीमेंट ऑफ हाइपोथिकेशन, आपने स्टॉक का लिया, ठीक है, स्टॉक लिया। कार भी हाइपोथिकेट ही होती है, ठीक है, व्हीकल जिसको बोलते हैं आप। सेकंड, एग्रीमेंट ऑफ प्लेस, डीड ऑफ मॉर्गेज, जिसको हम लोग कहते हैं लेटर ऑफ लियन एंड लेटर ऑफ सेटअप्स, ठीक है। तो जो भी है डॉक्यूमेंट ऑब्टेन्ड बाय द बैंक में आइदर बी एन एग्रीमेंट और ए बॉन्ड और ए डीड, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। डॉक्यूमेंट जो है बैंक ऑब्टेन करता है तो आइदर जो होगा वो एग्रीमेंट होगा और बॉन्ड होगा और डीड होगा, ठीक है। एग्रीमेंट किसे कहते हैं? एग्रीमेंट एक्सट्रैक्ट फिक्स स्टाम्प ड्यूटी। देखिए, स्टाम्प ड्यूटी इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट इन्वॉल्व। जैसे मान लीजिए कि आप बिहार में हैं, ठीक है, बिहार में तो आपको एग्रीमेंट के लिए 1000 रुपये की स्टाम्प ड्यूटी लगती है। यूपी में आप जाएंगे 100 रुपये की लगती है, दिल्ली में आप जाएंगे 100 रुपये की लगती है, ठीक है। इस तरह से स्टेट सब्जेक्ट है, वहाँ पे जो है स्टैम्प ड्यूटी आपको पे करना पड़ेगा फॉर एक्सक्यूशन ऑफ एग्रीमेंट। दिस डॉक्यूमेंट इज नॉट टू बी अटेस्टेड और विटनेस बाय द थर्ड पार्टी अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। ये डॉक्यूमेंट को जो है आपको टेस्ट या विटनेस नहीं कराना है किसी भी थर्ड पार्टी से अंडर एनी सर्कमस्टांस। तो मोस्ट ऑफ द बैंक डॉक्यूमेंट आर एक्सिक्यूटेड एज एन एग्रीमेंट, इसलिए बैंक जो है एग्रीमेंट एक्सिक्यूट कराते हैं। बॉन्ड क्या है? टू बिकम ए बॉन्ड अ डॉक्यूमेंट मस्ट हैव फॉलोइंग एलिमेंट्स। सेक्शन 25 ऑफ इंडियन स्टैम्प एक्ट कहता है, पहला, एन एक्सप्रेस्ड ऑब्लिगेशन टू पे विच मस्ट बी इन्फोर्सेबल। तो एन एक्सप्रेस्ड ऑब्लिगेशंस, कोई भी ऑब्लिगेशंस टू पे विच मस्ट बी इन्फोर्सेबल होना चाहिए। टू ए पर्सन नेम्ड इन द इंस्ट्रूमेंट sorry friends, a sum of money which not necessary to be different amounts, अगर डिफरेंट अमाउंट्स में नहीं है, साइन बाय ए मेकर, अटेस्टेड बाय ए विटनेस, दैट इज कॉल्ड बॉन्ड, ठीक है। द मेन टेस्ट ऑफ बॉन्ड इज अटेस्टेशन। बॉन्ड में क्या है, आपको अटेस्टेशन करना पड़ेगा। इट इज ऑल्सो अट्रैक्ट एड वैलोरम स्टाम्प ड्यूटी, इस पर स्टाम्प ड्यूटी भी लगता है द स्टेट कॉल्स, ठीक। डीड क्या है? कोई आपने डीड बनाया, लीज डीड हो गया, ठीक है। तो ये कहता है द डीड इज साइंड एंड यूजुअली सील्ड इंस्ट्रूमेंट ड्यूली एक्सिक्यूटेड एंड डिलीवर्ड कंटेनिंग सम ट्रांसफर्स, बार्गेन्स और कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। जैसे हमने प्रॉपर्टी का लीज डीड बनाया, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसमें एक्सिक्यूट किया जाता है और डिलीवर किया जाता है कंटेनिंग सम ट्रांसफर्स, बार्गेन्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। तो ये हमारे हो गए डीड। तीन चीजें हो गई हमारी। चार्ज क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट में आपका एग्रीमेंट आ गया, बॉन्ड आ गया, ठीक है, डीड्स आ गए। नेक्स्ट हमारा है रिक्विजिट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट का क्या 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 रिक्वायरमेंट है? फॉर ए डॉक्यूमेंट टू बी करेक्ट एंड इन्फोर्सेबल इट मस्ट कंटेन द फॉलोइंग। डॉक्यूमेंट जो है करेक्ट और इन्फोर्सेबल होना चाहिए, उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, आप डॉक्यूमेंट अगर आपका इरेगुलर जिसे बोलते हैं, इरेगुलर, इसमें क्या होगा, अगर मान लीजिए आपने नेम गलत लिख दिया, ROI गलत लिखा, आपने मान लीजिए किसी भी हद तक जो है एड्रेस गलत लिखा, ठीक है, अमाउंट गलत लिखा, ठीक, तो ये सब चीज़ें क्या इरेगुलर डॉक्यूमेंट्स में आते हैं। अनफिल्ड रहा तो ये सब चीज़ें जो है irregular डॉक्यूमेंट में आती है एंड इन द कोर्ट ऑफ लॉ सेम कैन नॉट बी एडमिटेड इफ अनफिल्ड, ठीक है। और इफ अगर आपका रॉन्ग है तो फिर आप केस भी हार सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको करेक्ट नेम, कंस्टिट्यूशंस, इफ नॉट एन इंडिविजुअल ऑफ द बोरोवर एंड गारंटर, ठीक है। सेकंड होगा प्रॉपर रिसाइटल करना है, दिस इज एन एक्सप्लेनेशन अबाउट द लोन पर्पस। रिसाइटल्स मीन इक्विटेबल मॉर्गेज, ठीक है। प्रॉपरली एंड एडिक्वेटली स्टाम्प होना चाहिए, स्टाम्प कोड भी वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, मैंने जैसे आपको बताया। करंट एंड लीगली फोर्सफुल होना चाहिए, लॉ ऑफ लिमिटेशन केप्ट इन माइंड। 3 इयर्स तक कोई भी डॉक्यूमेंट्स की ये होती है। इन केस ऑफ आपका मॉर्गेज प्रॉपर्टी है तो 12 इयर्स ऑफ एक्सक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट। डिस्क्रिप्शन सिक्योरिटी मेंशन होना चाहिए, क्लियर एंड करेक्ट होना चाहिए।
डिस्क्राइबिंग हाउ कंसिडरेशन इज पास्ड ऑन, लोन अमाउंट एंड मोड, लोन अमाउंट एंड मोड होना चाहिए, टर्म्स एंड रीपेमेंट, टर्म्स ऑफ रीपेमेंट एंड इंटरेस्ट क्लॉज उसमें मेंशन होना है, टर्म्स म्यूचुअली एग्रीड अपॉन, प्लेस ऑफ एक्सक्यूशन लास्ट में हम लोग लिखते हैं, जैसे दिल्ली डेटेड, जो भी लिखना है उसमें आप डाल देते हैं नवंबर 2024। तो दैट मीन्स प्लेस ऑफ एक्सक्यूशन एंड डेट। देखिए जब आपका प्लेस चेंज होता है, जैसे मान लीजिए आपको, अगर मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट दो स्टेट में एक्सिक्यूट होता है, समवन borrower 1 is in Delhi and borrower 2 is in Bihar, थिंक borrower 2 is in Bihar, तो borrower 1 ने जो है इस डॉक्यूमेंट को बिहार में, दिल्ली में एक्सिक्यूट कर लिया, वहाँ 100 रुपीज़ का स्टैंप लगा एज फॉर दी एग्रीमेंट, ठीक है। नाउ वही डॉक्यूमेंट जब यहाँ पे आया बिहार में एक्सिक्यूट होने के लिए, चूंकि यहाँ स्टैंप ड्यूटी 1000 की है, तो यहाँ इसको 900 रुपीज़ का स्टाम्प और ऐड करना पड़ेगा, तब जाके ये डॉक्यूमेंट इन्फोर्सेबल होगा, ठीक है। तो इसलिए प्लेस ऑफ एक्सक्यूशन एंड डेट लिखते हैं, ड्यूली रजिस्टर्ड व्हेनेवर रिक्वायर्ड। डॉक्यूमेंट का सिलेक्शन कैसे करेंगे, तो इन केस ऑफ एनी लीगल प्रोसीडिंग्स द टर्म कंडीशन कंटेंट इन द डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस्ड एज एविडेंस, ठीक है। जो आपने टर्म एंड कंडीशन टीएनसी आपने जो है डॉक्यूमेंट में मेंशन किया है, वही आप कोर्ट के सामने प्रेजेंट करते हैं कि भैया इसने जो है हमारे टर्म एंड कंडीशंस का वायलेशन किया है, ठीक है। So will be minutely examined and interpreted by the court of law. It is therefore imperative that the right type of document should be selected for the execution at the time of disbursement of any evidence advance. Such documents should be selected among those drafted and approved by the competent authority. ठीक है, तो क्या होना चाहिए, such documents should be selected among those drafted and approved by the competent authority. Selection of डॉक्यूमेंट्स एज वेल एज देयर एक्सक्यूशन विल वेरी अकॉर्डिंगली इन फॉलोइंग फैक्टर। देखिए वेरी कर सकता है। देखिए टाइप ऑफ बोरोवर सच एज इंडिविजुअल्स, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप फॉर्म्स एंड लिमिटेड कंपनी। इंडिविजुअल के केस में डॉक्यूमेंट्स जो होंगे उसके अलावा सोल प्रोप्राइटरशिप में कुछ और ऐड हो जाएगा, पार्टनरशिप में कुछ और ऐड हो जाएगा, लिमिटेड में कुछ और ऐड हो जाएगा। नेचर ऑफ सिक्योरिटी क्या है, इसे मान लीजिए मूवेबल एसेट्स है, गुड्स है, इमूवेबल प्रॉपर्टीज है, मशीनरीज है, लाइव स्टॉक्स है। इतनी चीजें इमूवेबल सिक्योरिटी में आ सकती है, मोबाइल एसेट्स, गुड्स, इमूवेबल प्रॉपर्टीज, मशीनरी एंड लाइव स्टॉक्स। टाइप ऑफ चार्ज सच एज हाइपोथिकेशंस, प्लेस, मॉर्गेज, ठीक है। टाइप ऑफ एडवांस कौन कौन सा हो सकता है, सच एज डिमांड लोन, आप जो है डिमांड लोन ले सकता है, वो टर्म लोन ले सकता है, कैश क्रेडिट ले सकता है, ओवरड्राफ्ट ले सकता है, गारंटी ले सकता है, लेटर ऑफ क्रेडिट, कंसोर्शियम एडवांस, etc। तो चेंज हो, ये क्या है, डॉक्यूमेंट का सिलेक्शंस जो है एज पर द सैंक्शंस, एज पर द सैंक्शंस ऑफ लोन और टाइप्स ऑफ लोन्स के बेसिस पे होता है, ठीक। स्टाम्पिंग ऑफ डॉक्यूमेंट जो है मोस्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। इनकेस आप अनस्टैम्प्ड रह गया तो इसका पेनल्टी भी बहुत ज़्यादा है, पेनल्टी जिसको बोलते हैं पेनाल्टी, ठीक है। देखिए टाइप ऑफ स्टैम्प जो है, 3 टाइप्स ऑफ स्टैम्प होता है। एक होता है जुडिशियल जो ओनली कोर्ट में यूज होता है, सेकंड होता है नॉन जुडिशियल जिसको हम लोग यूज करते हैं, थर्ड होता है पोस्टल। तो जुडिशियल स्टैम्प आर यूज्ड ओनली इन कोर्ट्स, ठीक है, तो ये सिर्फ कोर्ट का पार्ट है। नॉन जुडिशियल स्टैम्प आर यूज्ड इन कनेक्शन विद द ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व्ड इन एनी रिटन स्टेटमेंट। कोई भी रिटन स्टेटमेंट में हम लोग क्या होता है, नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर लगाते हैं, या एडहेसिव भी आज कहते हैं, एडहेसिव स्टैम्प ये चलता है कुछ जगह बिहार में, पुरानी जगह, तो इसको स्टैम्प करना, इसको कैंसिलेशन करना पड़ता है, ठीक है। नॉन जुडिशियल स्टैम्प में भी फॉलोइंग टाइप। अब नॉन जुडिशियल स्टैम्प का पार्ट है एडहेसिव रेवेन्यू स्टैम्प, दैट मस्ट बी put it on the front of the first page of the agreement and have to be cancelled from the SDO, सब डिविजनल ऑफिसर, ठीक है। स्पेशल एडेसिव इम्प्रेस्ड इम्बॉस्ड स्टाम्प, नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर, तो हम लोग क्या करते हैं सबसे ज़्यादा इसी को लगाते हैं, नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर, नो कैंसिलेशन का कोई भी इशू नहीं, कोई भी झंझट नहीं, ठीक है। तो मोड ऑफ यूजिंग क्या होगा, कैंसिलेशन ऑफ स्टाम्प, ठीक है। अब देखिए डीपी नोट है तो 100 रुपये तक के लिए रेवेन्यू स्टाम्प 25 पैसे का लगेगा, लेकिन आपको रेवेन्यू स्टाम्प 1 रुपये से कम का आता नहीं है, तो सब कोई 1 रुपये का ही लगाता है, 1 रुपीज़ वन का ही लगाता है। 100 एंड अबव के लिए क्या है, स्टाम्प ड्यूटी 1 रुपीज़ है। 500 रुपीज़ के लिए, 500 एंड अबव के लिए स्टाम्प रुपीज़ 1 ईयर स्टाम्प, रेवेन्यू स्टाम्प दैट इज छोटा सा होता है, इसमें भारत का एम्बलम होता है, भारत सरकार का, ठीक है।
एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट एंड सिक्योरिटीज, ठीक है। इसमें कोई किसी भी अमाउंट के लिए रेवेन्यू स्टाम्प 1 डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट ऑफ लेजिस्लेशन। तो एडेसिव रेवेन्यू स्टाम्प आर यूज्ड ऑन डिमांड प्रोमिसरी नोट्स, डीपी नोट पर हम लोग यूज करते हैं ना उसको, रिसीट्स एंड एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट्स एंड सिक्योरिटीज। स्पेशल एडेसिव स्टाम्प कहाँ यूज करते हैं? यूज ऑन ऑन अदर डॉक्यूमेंट्स। इन एक्सेस ऑफ स्पेशल एडेसिव स्टाम्प इम्प्रेस्ड नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर में भी यूज, हम लोग इसको नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर ज़्यादा यूज करते हैं। क्यों? बिकॉज कि आपको उसको कैंसिलेशन का झंझट ना पड़े, ठीक है। देखिए अब इसमें क्या है, द एडेसिव स्टाम्प revenue stamp, the adhesive revenue stamp are required to be cancelled by the executant in such a manner that it cannot be used again, ठीक है। नॉर्मल केसेज में हम लोग एडेसिव स्टाम्प साट के ऐसे ऐसे कैंसिल कर देते हैं, बट इट नॉट बी ए प्रॉपर मेथड, वी हैव टू बी कैंसिल्ड बाय द रजिस्ट्रार, ठीक है, और एसडीओ, सब डिविजनल ऑफिसर, ठीक है। The best way for cancellation is to start signature on paper, run across the stamp and end of the paper. When there is no more than one executant, it is not necessary that all the signatory must appear on the stamp. अगर एक आदमी है तब तो ठीक है, वो स्टार्ट करे नीचे से और स्टाम्प तक पहुंच जाए, या स्टाम्प से स्टार्ट करे नीचे तक पहुंच जाए, दैट इज द प्रॉपर मेथड। However, in case of joint borrower, ठीक है, it is not necessary to each and every one have to be signed on the across sign of the adhesive stamp। तो कहता है स्पेशल एडिसिव स्टाम्प आर कैंसिल्ड बाय द ट्रेजरी, ट्रेजरी से आप करा सकते हैं, कलेक्टर से करा सकते हैं, नॉट टू बी कैंसिल्ड बाय द एक्सिक्यूटेंट, ठीक है। स्पेशल एडिसिव स्टाम्प क्या है? आपको ट्रेजरी और कलेक्टर से कैंसिल कराना है। नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर इफ यूज्ड आल्सो नॉट टू बी कैंसिल्ड बाय द एक्सिक्यूटेंट। नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर में आपको कैंसिलेशन की नॉट रिक्वायरमेंट है। एवरी इंस्ट्रूमेंट रिटन अपॉन पेपर स्टैम्प्ड with an impressed stamp shall be such in a manner that the stamp duty may appear on the face of instrument। टाइम ऑफ स्टैंपिंग इंस्ट्रूमेंट क्या हो सकता है? तो कोई भी जो है डॉक्यूमेंट फॉर टाइम ऑफ स्टैंपिंग, ऑल इंस्ट्रूमेंट चार्जेबल विद ड्यूटी एंड एक्सिक्यूटेड बाय एनी पर्सन इन इंडिया शैल बी स्टाम्प बिफोर ऑडिटेड टाइम ऑफ एक्सक्यूशन, मस्ट बी स्टाम्प होना चाहिए। द इंस्ट्रूमेंट अदर देन अ बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रीमियरी नोट विच आर एक्सिक्यूटेड आउटसाइड इंडिया मे बी स्टाम्प्ड विद इन 3 मंथ। 3 महीने के अंदर आपको स्टाम्प करना है, स्टाम्प करना है आफ्टर दे हैव बीन फर्स्ट रिसीव्ड इन इंडिया। In case of bill of exchange, payable otherwise than on demand of promissory notes drawn or made out of the India, the first holder in India shall affix proper adhesive stamp and cancel the same before present the same for the acceptance or payment of industry transfer or negotiation of India. Often the stamp on the bills of exchange are left to be cancelled through ignorance oversight. It may be noted that this is observed seriously by the Revenue Authority. Revenue Authority बहुत ही इसको गंदे ढंग से लेता है। एंड द बैंक में फेस इनिशिएशन ऑफ एक्शन विद हेवी पेनल्टी, देयरफॉर कैंसिलेशन ऑफ स्टाम्प शुड बी मेटिकुलसली फॉलोड होना चाहिए, जो भी स्टाम्प है फॉलो होना चाहिए। देखिए डॉक्यूमेंट फॉर विच स्टाम्प ड्यूटी इज सेम फॉर ऑल ओवर इंडिया, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स है जहाँ पे स्टाम्प ड्यूटी जो है ऑल इंडिया में सेम है, फिक्स है इसका। जैसे प्रोमिसरी नोट्स है, पीपी नोट्स जिसको बोलते हैं, यूजांस बिल्स है, लेटर ऑफ क्रेडिट्स, बिल ऑफ लैंडिंग्स, रिसीट्स, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, डिवेंचर्स, इंश्योरेंस पॉलिसी, प्रॉक्सी। तो फॉर ऑल अदर डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट्स एंड सिक्योरिटी, द स्टाम्प ड्यूटी विल बी डिफर फ्रॉम स्टेट टू स्टेट्स। स्टेट टू स्टेट्स पे जो है स्टाम्प ड्यूटी डिफर करता है। देखिए अब कहता है स्टाम्प ड्यूटी ऑन डॉक्यूमेंट कंटेनिंग सेवरल डिस्टिंक्ट मैटर। अगर किसी डॉक्यूमेंट में डिफरेंट डिफरेंट मैटर्स हैं तो उस पर स्टाम्प ड्यूटी क्या लगेगी, ठीक है। तो an instrument comprising of several distinct matters shall be chargeable with the aggregate amount of duties with which each instrument would separately chargeable, ठीक है। जैसे मान लीजिए इकोनॉमिक डेट्स एंड सिक्योरिटीज विथ चेंज ऑफ इंटरेस्ट रेट, हाइपोथिकेशन ऑफ बुक डेट्स, तो स्टाम्प ड्यूटी जो है टोटल का ओवरऑल जोड़ के लगेगा। जैसे मान लीजिए आप एक प्रॉपर्टी आप रजिस्ट्री करवाने जाते हैं, उसमें लैंड का कीमत अगर आपने 15 लाख लगाया और उसमें जो बिल्डिंग है उसका कीमत आपने 14 लाख लगाया, टोटल 29 लाख रुपए हुए। तो स्टैम्प ड्यूटी सिर्फ लैंड की नहीं लगेगी, आपको पूरे प्रॉपर्टी की लगेगी, ठीक है।
नेक्स्ट जो है हमारा डॉक्यूमेंट एक्सिक्यूटेड अगर मोर देन वन स्टेट, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, it should be first executed on the stamp applicable to the first state of execution and then the document should be sent to another state. दूसरे स्टेट में भेजेंगे. अब कहता है कि इन सेकेंड स्टेट इफ द रेट ऑफ स्टाम्प ड्यूटी इज मोर देन द फर्स्ट स्टेट, पहले वाले स्टेट से ज़्यादा, जैसे मैंने आपको बोला दिल्ली में 100 रुपये है, यूपी में 100 रुपये एग्रीमेंट का है, ठीक है. और इन केस बिहार में आप आते हैं, सेकेंड यहाँ पे एक्सिक्यूट होता है तो 1000. तो कहता है ओनली द डिफरेंस ऑफ ड्यूटी शुड बी फिक्स्ड इन द सेकेंड स्टेट बिफोर एक्सिक्यूशन. तो 900 रुपये का डिफरेंस आ गया. 900 रुपये का जो ड्यूटी है आपको बिहार में पे करना पड़ेगा. देयर आफ्टर डॉक्यूमेंट विल बी एक्सिक्यूटेड. इफ द सेकेंड स्टेट इज JNK, द फुल ड्यूटी एप्लीकेबल टू द दैट स्टेट शुड बी फिक्स्ड बिफोर. अगर JNK है तो वहाँ पे आपको पूरी ड्यूटी पे करनी पड़ेगी. इन केस अगर आपका डॉक्यूमेंट प्रॉपरली नॉट स्टैम्प्ड है तब क्या होगा. तो इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899 कहता है सेक्शन 33, every person having authority to receive evidence and every person to charge the public office before who any instrument not duly stamped is produced shall impound it. ठीक है. पनिशमेंट होगा, that is to say that the registrar will charge full or deficit duty with penalty and then endorse a certificate on instrument that proper duty and penalty have been levied and paid. ठीक है. अगर आपको 1000 रुपये का स्टाम्प लेना था, आपने इमीडिएट उसको 1000 रुपये का पे नहीं किया, अनस्टैम्प रह गया, या 1000 रुपये की जगह पर आपने 100 रुपये का स्टाम्प लगाया, 900 रुपये का शॉर्टेज हो गया, एट द टाइम ऑफ एक्सिक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट ये लेस स्टैम्प ड्यूटी के कारण कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होगा. तो आप इसको क्या करेंगे, जब रजिस्ट्रार के पास लेके जाएंगे तो डिफरेंस अमाउंट जो लेगा प्लस पेनल्टी लेके उसको इंडोर्स करेगा. देन द डॉक्यूमेंट विल बी सुटेबल फॉर admissible, then document will be admissible in the courts. ठीक है. According to section 35 of Indian Stamp Act, if bill of exchange or promissory note was not duly stamped, it cannot be revalidated by any means, would be inadmissible in evidence of any purpose. However, with the recent amendment to the section by Finance Act 2006, even a bill of exchange or promissory notes is under stamp, they can still admit it in the evidence by paying a penalty. पहले जो था इंडियन स्टैम्प एक्ट 35 सेक्शंस कहता था कि इन केस अगर आपका जो है बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट्स जो है DPN जिसको बोलते हैं वो आपका अनस्टैम्प्ड रह गया तो सेम कैन नॉट बी एडमिसिबल और सेम कैन नॉट बी रिवैलिडेटेड बाय एनी मींस. हाउएवर एज पर द अमेंडमेंट moved in the parliament and by the amendment Finance Act 2006, now the bill of exchange and promissory notes, if under stamp, they can still admitted in the evidence as admits by paying the penalty. So deficit duty as may prescribe. That means a suit based on the promissory notes or bill of exchange is maintainable and defense is not paying proper stamp duty, not available. However, for other documents, if the same are not duly stamped, they will not be accepted in evidence. अगर ये properly stamped नहीं है तो ये क्या होगा, एविडेंस के रूप में एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा. बट दोज डॉक्यूमेंट कुड स्टिल बी रिवैलिडेटेड 10 टाइम्स ऑफ स्टैम्प ड्यूटी. तो पेनल्टी गोइंग अप टू 10 टाइम्स ऑफ डेफिसिट ड्यूटी. ठीक है. रेमेडी क्या है, अगर डॉक्यूमेंट नॉट स्टैम्प्ड है ड्यूली तो एजुकेशन में क्या प्रॉब्लम आएगी. एनी डॉक्यूमेंट में बी प्रेजेंटेड टू द स्टाम्प अथॉरिटी फॉर एजुकेशन ऑफ स्टाम्प ड्यूटी देयर ऑन आइदर बिफोर एक्सक्यूशन within 1 month of the date of execution. It may be unstamped, deficiently stamped, or improperly stamped. The stamp authority will determine and collect the proper duty deficit along with the education fees and certify the document to be properly stamped. ठीक है. एजुकेशन में जब आपको आएगा स्टाम्प ड्यूटी अगर शॉर्ट होगा तो बिफोर एक्सक्यूशन या विद इन द 1 month और डेट ऑफ एक्सक्यूशन इट मे बी अनस्टैम्प्ड. तो डिफिशियंसी स्टाम्प जो होगा या इम्प्रॉपरली स्टाम्प जो होगा या उसमें जो होगा डेफिसिट जो होगा उसके अलावा जो है एजुकेट फीस लेके इसको डॉक्यूमेंट को प्रॉपरली स्टैम्प किया जाएगा. एनी इंस्ट्रूमेंट विथ सच एन एजुकेशन सर्टिफिकेट शैल बी डीम्ड टू बी ड्यूली स्टैम्प्ड एंड शैल बी रिसीवेबल इन एविडेंस एज इफ इट हैड बीन ओरिजिनली स्टैम्प्ड सेक्शन. ठीक है. रिवैलिडेशन होगा
upon the revalidation upon the penalty payment of penalty. Any document not duly stamped other than the bill of exchange of DPN may be revalidated and admitted in evidence on payment of proper deficit duty. आप ले सकते हैं इंडियन स्टैम्प एक्ट जो है इसमें आपको डेफिसिट ड्यूटी का आपको जो है पे करना है प्लस पेनल्टी करना है, तो उसके बाद जो है वो वैलिडेट होके आप जो है आप उसको एविडेंस में ले सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट अंडर अनड्यूली स्टैम्प्ड बाय द एक्सीडेंट, ठीक है। मानिए कहता है इफ एन इंस्ट्रूमेंट हैज अनड्यूली स्टैम्प्ड बाय एक्सीडेंट and the fact that the circumstances under which such document other than the bill of exchange of promissory notes were not duly stamped and brought to the notice of the collector within 1 year of execution of such document, the collector may be being satisfied that the omission has been occasioned by the mistake, accident or urgent necessary receive such amount of duty as was chargeable। बस इतना ही कर सकता, ठीक है। डॉक्यूमेंट नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट फॉर विच रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी। ऐसे डॉक्यूमेंट जिनका रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी है, तो कहता है अंडर सेक्शन 17 ऑफ इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908, इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट था 1908। सारे जो हमारे यहाँ एक्ट्स हैं वो मोस्टली जो है अंग्रेज के ज़माने के बने हुए हैं और उसी एक्ट को हमने हूबहू एक्सेप्ट कर लिया सर्टेन अमेंडमेंट्स के साथ। फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी कंपल्सरी रजिस्टर्ड, ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ गिफ्ट एंड मूवेबल प्रॉपर्टी, अगर कोई गिफ्ट होता है आप देते हैं तो ये स्टाम्प्ड होना चाहिए। नॉन टेस्टामेंटरी इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग एनी राइट्स और इंस्ट्रूमेंट इंटरेस्ट ऑफ वैल्यू ऑन 100 रुपीज एंड अपवर्ड फॉर मूवेबल प्रॉपर्टी। नॉन टेस्टामेंटरी इंस्ट्रूमेंट जो है एक्नॉलेजिंग द रिसीट ऑफ एनी कंसिडरेशन ऑन अकाउंट ऑफ क्रिएशन ऑफ सच राइट एंड टाइटल ऑफ इंटरेस्ट एंड, ठीक है। डॉक्यूमेंट विच ही रजिस्टर्ड, ये रजिस्टर्ड करना है, ठीक है। लीज करना है, कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी का आप लीज कर रहे हैं ईयर टू ईयर, मान लिया आपने 15 ईयर्स के लिए किया या 20 ईयर्स के लिए किया, तो आपको उसको रजिस्टर्ड करना है 1 ईयर, ठीक है। नॉन टेस्टामेंटरी इंस्ट्रूमेंट अगर है ट्रांसफरिंग एनी डिक्री और ऑर्डर ऑफ ए कोर्ट क्रिएटिंग एनी राइट्स और इंस्ट्रूमेंट ऑफ वैल्यू ऑफ 100 एंड अपवर्ड्स टू और इन इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो ऑब्जेक्ट क्या है, रजिस्ट्रेशन का मेन ऑब्जेक्ट क्या है, इज टू सर्व द पर्पस ऑफ पब्लिक नोटिस। पब्लिक नोटिस में आ जाए a document which is plainly intended to be operative immediately and to be final irrevocable is non testamentary, ठीक है। टाइम लिमिट क्या होगा रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट के लिए, तो अकॉर्डिंग टू इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट जो है certain guidelines है provision with regard to the time of presentation of document for registration is under section 23 of the act all document require registration must be presented for registration within 4 months फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सक्यूशन। डेट ऑफ एक्सक्यूशन से विद इन 4 मंथ आपको इसको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करवा लेना है। सेक्शन 25 कहता है कि व्हेन डॉक्यूमेंट इज नॉट प्रेजेंटेड फॉर रजिस्ट्रेशन एज अबव थ्रू अनअवॉइडेबल circumstances accident it can be presented for registration thereafter provided the delay does not exceed 4 months and the fine not exceeding 10 times of the registration fees paid, ठीक है। तो डिले जो होगा नॉट एक्सीड नहीं करेगा 4 मंथ से एंड फाइन जो होगा 10 गुना से ज़्यादा नहीं हो, ठीक है। फाइन नॉट एक्सीडिंग 10 टाइम्स द रजिस्ट्रेशन फीस इज पेड अंडर सेक्शन 26, 23, 25, 26। 23 कहता है कि विद इन 4 मंथ आपको प्रेजेंट करना है। 25 कहता है कि अगर आपका डिले हो गया तो आपको प्रोवाइडेड डिले डज नॉट एक्सीड 4 मंथ, ठीक है, 4 मंथ से ज़्यादा डिले नहीं होगा एंड फाइन जो होगा 10 टाइम से ज़्यादा नहीं लगेगा। अंडर 26 कहता है डॉक्यूमेंट एक्सिक्यूटेड आउटसाइड इंडिया, अगर आउटसाइड इंडिया करते हैं तो मस्ट बी प्रेजेंटेड फॉर रजिस्ट्रेशन विद इन 4 मंथ ऑफ अराइवल पे डॉक्यूमेंट जब इंडिया में आ जाएगा तो उसके 4 महीने के तक जो है उसको रजिस्ट्रेशन करवाना है। अंडर सेक्शन 26 दिस एक्सेप्शन हैज बीन मेड फॉर विल के लिए विच में बी प्रेजेंटेड फॉर रजिस्ट्रेशन एट एनी टाइम। विल के लिए कोई टाइमलाइन फिक्स नहीं है, विल एट कभी भी जो है रजिस्ट्रेशन के लिए प्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है। इनकेस अगर आपने नॉन रजिस्ट्रेशन कराया, अगर नॉन रजिस्ट्रेशन हो गया तो इसका इफेक्ट क्या होगा, इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड अंडर इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट
तो क्या कहता है, द फॉलोइंग आर द इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड। सेक्शन 49 ऑफ इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट कहता है द डॉक्यूमेंट कैन नॉट बी अफेक्ट प्रॉपर्टी कंप्राइज्ड। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट क्या है, प्रॉपर्टी पे कोई इफेक्ट नहीं कर पाएगा। द डॉक्यूमेंट कैन नॉट बी रिसीव्ड एज एविडेंस ऑफ ट्रांजेक्शन अफेक्टिंग सच प्रॉपर्टी। इसको जो है आप जो है एविडेंस के रूप में नहीं ले सकते हैं। रजिस्ट्रेशन चार्ज क्या होगा अंडर इंडियन स्टैम्प कंपनीज एक्ट, कंपनी के केस में अंडर 77 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। कंपनी एक्ट 2013 कहता है सेक्शन 77 फॉलोइंग चार्ज क्रिएटेड कंपनी आर रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड। जो भी चार्ज है वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास विद इन 13 डेज ऑफ सैंक्शन हमको करवाना पड़ता है। इसमें आपका लोन से रिलेटेड, स्टॉक से रिलेटेड और प्लस कोलेट्रल सिक्योरिटी से रिलेटेड कोलेट्रल। ये आरओसी की साइट है, एमसीए जिसको बोलते हैं, एमसीए 24 आपको यहाँ पे रजिस्टर्ड करना है। ठीक है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। तो इसमें क्या होगा, चार्ज ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी। इमूवेबल मतलब हो गया फिक्स एसेट्स। ठीक है, बुक डेट्स के ऊपर, चार्ज ऑन मूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी, मूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी के ऊपर में। सेकंड, अ फ्लोटिंग चार्ज ऑफ द अंडरटेकिंग ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी इंक्लूडिंग स्टॉक इन ट्रेड। हाइपोथिकेशन मैंने बोल दिया, स्टॉक्स का भी कराना है आपको। आरओसी के ऊपर चार्ज जो है, चार्ज ऑन एनी इशू ऑफ डिवेंचर्स, अनकॉल्ड शेयर्स, कॉल मेड बट नॉट पेड, चार्ज ऑन गुडविल पेटेंट रिसीव्स। ठीक है, तो इसमें कहता है कि अगर 30 दिन के अंदर आपने नहीं कराया तो एक ऑप्शन है कि आप विद इन 300 डेज मतलब 10 मंथ के अंदर आपको कराना है। द रजिस्ट्रार ऑफ द on an application of the company allows such registration to be made within the period of 300 days of such creation on payment of such additional fees may be prescribed under section 87 of the act, provided that on the application by the competent central government, competent application by the company, the central government may upon satisfaction extend the time for registration of charge, rectify the omissions। अगर 30 दिन के अंदर आपको नहीं होगा तो आप 300 डेज के अंदर भी करा सकते हो, बट इसके लिए जो है पेनल्टी है या जो चार्ज है वो आपको एडिशनल पे करना पड़ेगा। However, it may be noted that if any lender subsequently extend credit facility during such period and get it registered, the charge getted by the such banker would rank first। ठीक है, hence to avoid the such instant registration of charge should be done immediately। इस मान लीजिए 30 डेज के पीरियड में आपने जो है आरओसी करवाया, नहीं कराया, आरएससी लेट हो गई, आपने 300 डेज के बीच में गया, मान लीजिए कि उसी कंपनी के ऊपर किसी और बैंक ने जो है लोन कर दिया और उसको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से रजिस्टर कराया, जो ये बैंक है इसका फर्स्ट चार्ज हो जाएगा, इसलिए आपको इमीडिएटली उसको आरओसी पे रजिस्टर करना पड़ेगा। तो प्रोसेस इज डन डिजिटली, हैंस इट शुड बी थ्रू ऑथराइज ऑफिशियल ऑफ द बैंक हुज डिजिटल सिग्नेचर इज रिकॉर्डेड। प्रोसीजर क्या क्या है कंपनी की साइट पे रजिस्ट्रेशन का, तो इसके लिए क्या होता है, कुछ सर्टेन फॉर्म्स होता है जिसको आपको फिलअप करके डालना पड़ता है। पहला होता है चार्ज 1, इसमें रजिस्ट्रेशन और मॉडिफिकेशन होता है इस फॉर्म के द्वारा। चार्ज 9, इसमें क्या होता है, रजिस्ट्रेशन ऑफ क्रिएशन और मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज फॉर डिवेंचर्स, डिवेंचर्स के लिए होता है चार्ज 9। चार्ज 10 है कंडोनेशन ऑफ डिले, जो आपने डिले कर दिया 30 डेज ग्रेटर देन 30 डेज। चार्ज 4 जो है सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज। ये चार्ज फॉर्म जो है 1, 9, 10 and 4, charge 1 for registration, charge 4 for satisfaction, charge 9 for modification of charge for debentures। रेमेडी क्या है, चार्ज एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन टू बी क्रिएटेड विद इन 30 डेज। ठीक है, डेट ऑफ डॉक्यूमेंट से रजिस्ट्रार में ऑन एप्लीकेशन बाय द कंपनी कंडोन द डिले एंड अलाउ सच रजिस्ट्रेशन टू बी मेड विद इन द पीरियड ऑफ 300 डेज, सच क्रिएशन ऑन पेमेंट ऑफ एडिशनल फीस। सेक्शन 87 क्या कहता है, further provided that no application by the company, the central government may upon satisfaction extend the time for filling of the particular for the registration of charge or ratify the omissions। consequences क्या हो सकता है अगर आपने जो है नॉन रजिस्ट्रेशन किया आरओसी पे, तो a charge if not registered is void against the liquidator, void हो जाएगा if the company goes into the liquidation। अगर कंपनी लिक्विडेशन में जाती है तो अगर आपका चार्ज नहीं होगा तो आपका जो क्लेम है वो नल एंड वॉइड हो जाएगा। एंड एनी क्रेडिटर ऑफ द कंपनी मोर ओवर एज डिस्कस अबाउट ड्यूली रजिस्टर्ड
subsequent charge will get priority over the charge that has not been registered. मैंने अब उदाहरण दिया, आपका ये बैंक है, आपने जनवरी 2024 में लोन कर दिया, आपने चार्ज अभी तक रजिस्टर्ड नहीं किया, इसने जो है मार्च 2024 में लोन किया और इसने चार्ज जो है अप्रैल तक में रजिस्टर्ड कर दिया, ठीक है। तो ये प्रायोरिटी और फर्स्ट चार्ज इसका हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इमीडिएट करना है। As against the company itself, the creditor can enforce the charge or mortgage as long it does not go into the liquidation. अगर नेक्स्ट क्या है, नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज ऑफ ए मोटर व्हीकल विथ आरटीए। रीजनल ट्रांसपोर्ट नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज ऑन व्हीकल, हाइपोथिकेशन ऑफ व्हीकल होता है, हाइपो ऑफ व्हीकल। तो आरटीए के पास आप जो है डिस्चार्ज द गारंटी अंडर सेक्शन 1939 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है। ये केस था जो सिनेसियो लॉरेंस वर्सेस सिंडिकेट बैंक एंड अदर्स। Execution of document meaning, एक्सक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट जो है नेक्स्ट में पढ़ेंगे फ्रेंड्स। लगभग 40 मिनट का वीडियो हो गया है, ठीक है। इसको आज यहीं पे क्लोज करते हैं। अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।